Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 9 and we have already done quiz yourself 1 and quiz yourself 2. Okay, and in today's session I'm going to start with you all with the third quiz yourself given in your book in unit number 9. Okay, so the today's topic that we are going to start is quiz yourself 3 given at page number 75. So all of you kindly open your books at page number 75, that is quiz yourself 3. Okay, that is quiz yourself 3. Okay, so this is the topic that I am going to start today, and it is given at page number 75. Quiz yourself, page number 75. Okay, so again, what is the meaning of quiz? So in quiz you will find different topics, different questions that are related to the different topics. So none of the question is सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते. हर क्वेश्चन जो क्विज में एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक एज वेल. ओके, सो दैट इज क्विज योरसेल्फ. So starting with the first question, that is, who is the author of the Adventures of Sherlock Holmes? Okay, so have you ever heard about the Sherlock Holmes? Okay, so Sherlock Holmes beta, it is a novel. Okay, so it's a novel in there's a novel, detective novel है Sherlock Holmes नाम से. Okay, the Adventures of Sherlock Holmes. So the main character of that novel is Sherlock Holmes. तो Sherlock Holmes एक उस जो novel का जो main character है या कहते जो lead role है, that is being played by a character named Sherlock Holmes. So he has played a role of detective. Okay, so you can see the movies also. बहुत सारी मूवीज़ भी मतलब बहुत सारी नहीं, उनके ऊपर मूवीज़ उसी ऑथर की इस स्टोरी के ऊपर, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स के ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं. ओके, सो वैसे सो इन दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स. तो शेरलॉक होम्स नाम की जो किताब है उसकी ऑथर कौन है? सो द ऑथर ऑफ The Adventures of Sherlock Holmes is Sir Arthur Conan Doyle. So the author is Sir Arthur Conan Doyle is the author of the book The Adventures of Sherlock Holmes. So I'll just give you a small explanation that what you can ये story में क्या है. So देखिए ये story है एक detective के बारे में who is a very he is very मतलब हिज मतलब विजिलेंस इज सो हाई कि मतलब आप जो कोई इंसान नहीं देख सकता वो ही हैज़ एबिलिटी टू सी दैट. मतलब वो हर चीज़ को इतनी गौर से देखते थे, हर चीज़ को इतनी गौर से ऑब्जर्व करते थे, उसकी छोटी सी छोटी बात भी वो उनसे छुप नहीं सकती थी. सो ही इज़ जस्ट अ जीनियस माइंडेड डिटेक्टिव. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो मिस्ट्रीज़ है, मर्डर मिस्ट्रीज़ और बहुत सारी एंड सम रॉबरी मिस्ट्रीज़ आर देयर. सो ही हैज़ सॉल्व वेरियस अदर various cases that are very difficult for the others and the normal detectives to solve. तो बहुत सारे जो दूसरे डिटेक्टिव्स थे उनके लिए ये ऐसी जो स्टोरीज़ है वो सॉल्व करना, मिस्ट्रीज़ हैं जो सॉल्व करना मुश्किल होती थी. तो वही जो है दैट इज़ बीइंग ऐसी ही एक मिस्ट्री किसने सॉल्व की है, दैट इज़ बीइंग सॉल्व्ड. ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो कि शेरलॉक होम्स ने सॉल्व की हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अ डिटेक्टिव नॉवल एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस novel is the Sherlock Holmes only. So he has various adventures during उस ऑथर ने उसमें जो स्टोरी लिखी है उसमें उनके बहुत सारे एडवेंचर्स हैं कि दैट हाउ मतलब कितनी बारीकी से वो कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि उनसे कोई भी छोटी से छोटी बात भी छुपती नहीं है. ओके, सो व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स? दैट इज सर आर्थर कैनन डॉयल. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्विज योरसेल्फ इज Sir Arthur, A-R-T-H-U-R, Arthur Conan, C-A-N-O-N, Conan.
Sir Arthur Conan Doyle. D-O-Y-L-E. Sir Arthur Conan Doyle is the author of the Adventures of Sherlock Holmes. Moving to the second one. Okay, who lives in the White House in the Washington DC? Okay, Washington DC is the name of a city that is in United States. तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है, और यू कैन सी अ नेम ऑफ अ सिटी इज देयर. दिस इज अ सिटी हुज नेम इज वॉशिंगटन. तो वॉशिंगटन नाम की एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है, जिसे हम कहें ना कि इंडिया में एक दिल्ली नाम का शहर है. So just like that, there is a name of a city that is in United States. Okay, और उस वॉशिंगटन में, जहाँ वॉशिंगटन डीसी जिसको बोला जाता है, तो वॉशिंगटन में एक हाउस है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है व्हाइट हाउस. Okay, so there's a very great building in Washington which is named as White House. So now the question is, who lives in the White House in Washington DC? Okay, तो उस White House में कौन रहता है? That is President of US. क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट हैं वो जो हैं वाइट हाउस में रहते हैं. ओके, सो आपने सुना भी होगा, जैसे अभी रिसेंटली जो हमारे जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं. ओके, सो वैसे ही जैसे हमारे यहाँ इन इंडिया द प्रेसिडेंट्स हाउस को हम क्या बोलते हैं, द प्रेसिडेंट्स हाउस इज नोन एज राष्ट्रपति भवन बोला जाता है. ओके, सो जस्ट लाइक दैट देयर इज अ व्हाइट हाउस, ओके, विच इज़ द रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ही रिजाइड्स इन द व्हाइट हाउस दैट इज लोकेटेड इन द वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो हु लिव्स इन द व्हाइट हाउस इन द वॉशिंगटन डीसी? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. सो द आंसर ऑफ द सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. So President of US resides in the Washington DC. Next, what is the full form of UN? The full form of UN is United Nations. So UN किसका? United Nations is इसके अंदर बहुत सारी countries हैं that are being included in UN. So United Nations is a group of, you can say the group of countries, okay, जिनको इकट्ठे मिला के बोला था यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है. सो यूएन इज द यूनाइटेड नेशंस इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूएन. ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएन? दैट इज यूनाइटेड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएन इज यूनाइटेड नेशंस. The full form of UN is United Nations. Moving to the fourth one. In which film series would you find the characters Luke Skywalker, R2D2 and the Chewbacca? So this is a, okay, so these are the names of the characters of a movie series. एक मूवी की सीरीज है, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, the name of the characters is Luke Skywalker. So this is the name of the characters in that movie. Okay, then second is R2D2. These are also the name of the characters, and the third one is Chewbacca. So these are the three names of different characters, the different characters in the movie series. So you have to tell that what is the name of that film series. तो जो फिल्म की सीरीज है उसका नाम क्या है? So the name of that film series is Star Wars. तो Star Wars क्या है? इसके बहुत सारे सीरीज हैं. सीरीज मतलब एक ही नाम की, जैसे कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. I think इसके 5 parts हैं या 3 parts हैं. Okay, I am not sure because I have not watched it. So Star Wars is a series of movies जिसकी एक ही नाम के मतलब बहुत सारी सीरीज है, मतलब all the movies are connected to each other, जिसका मतलब sequel है. So this is a sequel of the movies. Okay, so now these are the characters. Okay, the Luke Skywalker, R2D2 and the Chewbacca. So these are the names of the characters of that movie, and you have to tell that what is the name of that film series. So the name of that film series is Star Wars. Okay, so the name of that is Star Wars. STAR. Star Wars. WARS. So Star Wars is the name of the film series. Okay, so in which you will find these main characters like Skywalker,
Luke Skywalker, R2D2 and Chewbacca. Okay, moving next to the fifth one. Which renewable source of energy produces solar energy? Okay, renewable मतलब reusable, जिसको कि हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं. सो विच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस सोलर एनर्जी. ठीक है, तो कौन सी ऐसी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है? दैट इज सन. तो जो सन है उससे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? दैट इज सोलर एनर्जी. सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इज सोलर एनर्जी. सो हाउ वी यूज द सोलर एनर्जी? ओके, देखिए सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सोलर पैनल. ओके, आपने सोलर पैनल्स के बारे में सुना होगा. ओके, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, सोलर पैनल्स होते हैं. सो क्या होता है कि व्हेन जो सूरज की रोशनी उन सोलर प्लेट्स के ऊपर या उन सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो वो उसकी ऊर्जा से सूरज की रोशनी से जितनी भी एनर्जी आती है वो उसको एब्जॉर्व करता है और उसको ही जस्ट ट्रांसफर इनटू अ एनर्जी एंड देन स्टोर इट इनटू अ बैटरी दैट इज अटैच टू दैट सोलर पैनल. तो सोलर पैनल के साथ एक बैटरी अटैच होती है और जब भी सूरज की रोशनी सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो वो सारी एनर्जी एब्जॉर्व करके या सारी वो जो भी रेज सन की रेज उस पर पड़ रही है उससे जो भी एनर्जी उसको मिल रही है तो वो सोलर पैनल उस सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके जो उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड होती है उसमें स्टोर करता जाता है. एक तरह से आप कह लीजिए कि बैटरी को चार्ज कर रहा है वो. ओके, एंड लेटर ऑन यू कैन यूज़ दैट सोलर एनर्जी फॉर लाइटिंग लाइट्स और अदर एक्टिविटीज़. तो जो जिस भी एक्टिविटी के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो तो यू कैन यूज़ द सोलर एनर्जी. ओके, हम इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या बल्ब जलाते हैं. वो हमने देखा होगा स्पेशली नाउ डेज मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स दे आर वर्किंग विद द सोलर एनर्जी ओनली. तो बहुत सारे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स के बगल में एक दे हैव जस्ट केप्ट द व्हाट वी कॉल इट एक बैटरी छोटी सी हम जो बोलते हैं उनके एक बैटरी अटैच होती है. ओके, तो जब भी और एक छोटी सी ऊपर सोलर प्लेट्स लगी होती हैं. ठीक है, तो जब भी सूरज की रोशनी उन सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ती है तो वो सारी प्लेट्स हैं जो एनर्जी को ऑब्जर्व करके तो उनके साथ जो बैटरी अटैच्ड होती है उसमें वो उसको कन्वर्ट कर उसमें एनर्जी में कन्वर्ट करके वो उसके अंदर स्टोर करते रहते हैं. एंड लेटर ऑन जब रात होती है तो वही सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर लाइटिंग द लाइट्स और द स्ट्रीट लाइट्स. तो स्ट्रीट लाइट्स में फिर उसी सोलर एनर्जी से जो लाइट है जो जलाई जाती है. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ सोलर एनर्जी. सो सोलर एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम सन. ओके, तो एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मतलब एक सोलर एनर्जी इज़ अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन लाइफ. ओके, सो क्वेश्चन इज विच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है? वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन. वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन. सन मीन्स सूरज. ओके, सो वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन. दैट इज द फिफ्थ वन, SUN. दैट इज सन. सो वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन. SUN, sun. Okay, moving next to the sixth one. So the sixth question is, what is a book of maps called? तो मैप्स की एक बुक होती है उसको क्या बोलते हैं? सो द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. ओके, जब आप थोड़ी बड़े हो जाओगे बेटा, व्हेन यू विल गो टू क्लास 6 and 7 यू विल गेट एटलस इन योर बुक्स. ओके, आपको अपने एक बुक्स के अंदर एक एटलस मतलब अलॉन्ग विद योर सोशल साइंस बुक यू विल गेट एटलस एज वेल. ओके, तो उस एटलस में क्या होता है? सो यू कैन सी द वेरियस मैप्स इन दैट एटलस. तो एटलस में बहुत सारे मैप्स होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि आपके फिजिकल मैप होगा, पॉलिटिकल मैप्स होगा, स्टेट मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? फिजिकल मैप्स में क्या होते हैं? जस्ट फिजिकल डिविजन्स आर बीइंग शोन. तो जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, एक फिजिकल डिवीजन शो किया था कि इंडिया यहाँ से शुरू है यहाँ से ख़त्म है. सो दिस इज जस्ट द फिजिकल डिवीजन. देन इज़ द पॉलिटिकल मैप्स में क्या होते हैं? उसके अंदर जो हमारा हर एक स्टेट है अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया उसको डिवाइड किया होता है कि जो हमारे स्टेट है वो कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेट कहाँ है. सो दैट इज़ पॉलिटिकल मैप. एंड देन उसके अलावा जो एटलस के अंदर से फिजिकल और पॉलिटिकल मैप नहीं होता. यू कैन सी यू कैन सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप इन दैट एटलस. लाइक यू कैन सी द मैप ऑफ वेरियस रिवर्स इन द वर्ल्ड. तो देखिए हर चीज़ का एक मैप होता है कि बताते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करना शुरू होती है, किस किस एरिया से होके गुजरती है और एट लास्ट जाके सी में कहाँ मिलती है.
So all these are being shown on the maps. Okay, there's river maps also. There are railway route maps also, road route maps also are there, and there are different kinds of map you can see. Okay, तो मोस्टली हर तरह के जो मैप्स हैं, ठीक है, मिलते हैं. फूड क्रॉप्स के रिगार्डिंग भी होते हैं कि कौन सी क्रॉप किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में होती है, कि मतलब जैसे कि इन यूपी यू विल फाइंड शुगर केन, राइस एंड वीट, दैट इज़ मेनली ग्रोन क्रॉप ऑफ दिस उत्तर प्रदेश. तो वैसे ही पंजाब की हम बात करें, वहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. ओके, सो ऐसे ही, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग दैट यू कैन सी ऑन अ मैप. ओके, सो व्हेन ऑल दीज थिंग आर पुट टुगेदर इन अ बुक, जब ये रेल रोड, रूट, लेक्स, रिवर्स एंड पॉलिटिकल, फिजिकल, ओके, एंड ऑल वर्ल्ड मैप, ठीक है, एशिया मैप, मतलब एशिया का मैप, व्हेन ऑल दीज मैप्स आर पुट टुगेदर इन अ बुक, जब इन सारी मैप्स को इकट्ठे एक बुक में रख दिया जाता है, सो दैट बुक इज नोन एज एटलस. ओके, तो उस बुक को क्या बोला जाता है? दैट बुक इज नोन एज एटलस. सो द बुक ऑफ मैप, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बुक ऑफ मैप्स कॉल्ड? दैट इज एटलस. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, ATLAS, that is atlas. A book of maps is called atlas. Okay, so these are the answers from 1 to 6. The first one is Sir Arthur Conan Doyle. He is the author of The Adventures of Sherlock Holmes. President of US. He resides in the White House, that is in Washington DC, United States. United Nations, this is the full form of UN. Next is Star Wars. This is the name of a film series. Okay, famous films is Sun. You can get solar energy from the sun. And the last is the Atlas. So Atlas is a book of map. A book of map is called Atlas. Okay, चलिए. Now moving next to the some further blanks that are given in your book. Moving to the 7th one. Which musical instrument was Pandit Ravi Shankar an expert at playing? So कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पंडित रवि शंकर जो हैं, ही इज़ एक्सपर्ट इन प्लेइंग. सो पंडित रवि शंकर इज़ एक्सपर्ट एट प्लेइंग सितार. ओके, तो पंडित रवि शंकर, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन आवर कंट्री. ओके, एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर, एक्सपर्ट. ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन प्लेइंग सितार. सितार क्या होता है? एक ठीक है, एक लंबा सा, जस्ट लाइक तो नीचे से गोल होता है, लंबी से. सितार इज जस्ट लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सितार. सो यू मस्ट हैव सीन इट. ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे वायर्स होती हैं. ओके, सो जस्ट लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सितार. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट एक्सप्लेन इट. ओके, नीचे से ये इस हेमिस्फेरिकल शेप में होता है. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ सितार. ओके, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है सितार का. ओके, यहाँ पे ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी यहाँ पे वायर्स यू कैन सी दैट. ये लकड़ी का होता है. सो दिस इज अ सितार. सो पंडित रवि शंकर इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग सितार. पंडित रवि शंकर इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग sitar. So this is a sitar. Okay, I have just tried because I'm sorry if I didn't made it very clearly. So I'm not good at drawing. So I've just tried to make it. Okay. So the question was, which musical instrument was Pandit Ravi Shankar an expert at playing? So Pandit Ravi Shankar is an expert at playing sitar. Okay. So that is the answer of the 7th one. That is sitar. SITAR. Pandit Ravi Shankar is expert at playing sitar. Moving to the 8th one. A forgetful Pacific regal blue tankfish, Dory, tries to reunite with her family. Which film are we talking about? Okay, so this is the movie that we are talking, that is Finding Dory. Okay, so a forgetful Pacific regal blue tankfish. So this is the story. Okay, so this is an animated movie, so most of you must have watched it. So this is a story of a fish
okay, who is blue in color. So one day he went somewhere for playing and वो एक sea में रहते हैं, ठीक है, he and his family resides in the sea. And one day what happens कि जब वो कहीं जा रहे मतलब when the Dory was playing, तो वो क्या होता है, वो खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती है, ओके. एंड आफ्टर दैट द सी इज़ वेरी वास्ट, तो सी बहुत बड़ा है और हर जगह एक जैसी है. सो ही जस्ट फॉरगॉट्स दैट हाउ नाउ. उसके बाद क्या होता है, जब उसको पता लगता है कि वो अपने घर से बहुत दूर आ गई है एंड ही इज़ नॉट एबल टू find that he is not able to find his house. So he starts crying. He felt very, वो बहुत घबरा जाती है. But later on in the whole movie you will find out that how he tries टू रीयूनाइटेड फैमिली. वो अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कितनी कोशिश करती है ताकि वो उनके साथ रह सके. सो दिस इज़ अ फॉरगेटफुल पैसिफिक रीगल ब्लू टैंक फिश. सो दिस इज़ अ रीगल ब्लू कलर की एक फिश है, डोरी, हुज नेम इज़ डोरी, ट्राइज टू यूनाइट विद हर फैमिली. विच फिल्म वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि अपनी फैमिली के साथ वापस जाना चाहती है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मूवी, जिसकी स्टोरी है. सो द नेम ऑफ दिस मूवी इज़ फाइंडिंग डोरी. ओके, सो द नेम ऑफ द मूवी इज़ फाइंडिंग डोरी. इट्स एन एनिमेटेड मूवी. That is Finding, Finding. That is Finding Dory, Dory. Finding Dory is the name of the movie. Okay. Moving next to the 9th one. How many faces does a sphere have? Okay, sphere. I will just show you a sphere. So this is a spherical figure. ओके, सो हाउ मेनी फेसेस डज अ स्फेयर हैव. तो एक स्फेयर, ये दिस इज अ स्फेयर एंड हाउ मेनी फेसेस डज अ स्फेयर हैव. इस स्फेयर के कितने फेसेस हैं. ओके, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्यूब. अगर मैं आपसे क्यूब के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक टू यू अबाउट द क्यूब, just a second. So this is a cube. Okay, so if I ask you that how many faces does a cube have, you will say 1, ठीक है, 2, 3, 4, इसके आगे 5 एंड एक नीचे 6. So cube has 6 faces. हम कहेंगे a cube has 6 faces. But can you tell me that how many faces does a sphere have? एक sphere के कितने faces हैं? Can you tell me that? No, because a sphere don't have any face. So that means a sphere has 0 face or no face. तो ठीक है, एक स्फीयर के कितने फेसेस होते हैं? 0 फेस भी बोल सकते हैं. A sphere has no face. ओके, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. हाउ मेनी फेसेस डज a sphere have? A sphere has no face. और यू कैन राइट इट डाउन एट 0 एज वेल. चाहो तो आप 0 भी लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट बोथ इज करेक्ट. ओके, अ स्फीयर हैज नो फेस और 0 फेस. ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द 10th वन. विच एक्टर प्लेड बजरंगी इन द मूवी बजरंगी भाईजान. ओके, सो बजरंगी भाईजान मूवी में जो बजरंगी का रोल है वो किसने प्ले किया था. Okay, so this is one of the very beautiful movie by Salman Khan. Okay, so which actor played the Bajrangi? Actor played Bajrangi in the movie Bajrangi Bhaijaan. जो बजरंगी भाईजान नाम की एक मूवी है उसमें जो बजरंगी नाम का कैरेक्टर है वो किस एक्टर ने प्ले किया था. सो दैट वॉज प्लेड बाय सलमान खान. ओके, सलमान खान हैज प्लेड SALMAN. Salman Khan has played the role of Bajrangi in the movie Bajrangi Bhaijaan. Salman Khan has played the role of बजरंगी इन द मूवी बजरंगी भाईजान. तो बजरंगी भाईजान मूवी में जो बजरंगी का रोल था वो किसने प्ले किया था? सलमान खान ने. क्लियर? Moving to the 11th one. Okay, so now I am moving to the 11th question. In which city are the Wimbledon games held? तो विम्बल्डन गेम्स हैं वो कौन सी सिटी में होती हैं? सो विम्बल्डन गेम्स, देखिए दिस गेम इज रिलेटेड टू द
लॉन टेनिस। तो जो लॉन टेनिस में दिस इज द विंबलडन गेम्स, जो मोस्टली जो विंबलडन चैंपियनशिप्स होती हैं, दैट इज इन लंडन। सो विंबलडन इज द नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज लोकेटेड इन लंडन, ओके, एंड in which city this Wimbledon games held? So this Wimbledon games are held in London. That is answer 11. That is London. LONDON. So Wimbledon games are being held in London. Okay. So these are the answers from 7 to 11. 7th is Sitar. 8th is Finding Dory. 9th is A Sphere Has Zero Face or No Face. 10th is Salman Khan, and 11th is London. Just note it down in your notebooks. Okay. Moving to the last one of this exercise, that is the 12th one. Okay. So 12th one is, which Indian freedom fighter created the slogan Dilli Chalo? कौन से ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने स्लोगन क्रिएट किया था दिल्ली चलो? दैट इज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो ये स्लोगन दिया था, दैट इज दिल्ली चलो। सो द आंसर ऑफ द लास्ट वन इज सुभाष चंद्र, CHANDRA, Subhash Chandra Bose has given the slogan दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो दिस इज द solution of the last question. Okay, so Subhash Chandra Bose has given the slogan Delhi Chalo. Okay, so these are the names of the some of the this is the answer of the 12th question from a quiz yourself. Okay, so with this we have completed this exercise as well. So now I am moving to the some of the 3-4 MCQs are given at page number, that is 79. Okay, so open your books at page number 79. Okay, some MCQs are given and we are going to do that. So open your books at page number 79. So let's read this one. Okay, so the first one is, it is a process by which plant makes their food. तो जिस प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, सो व्हाट वी कॉल, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज photosynthesis. The process by which the plants make their food is known as photosynthesis. Okay, so the answer of the first one is, that is B1, that is photosynthesis, SYNTHESIS. Okay, so the process by which plants make their food is known as photosynthesis. Next, name the sports in which India has won gold medals in all the World Cups and the Asian Games so far. तो बताइए कौन सी गेम में जो इंडिया ने आज तक हमेशा गोल्ड जीता है, ओके, चाहे वो कोई वर्ल्ड कप हो या एशियन गेम्स हो. सो दैट इज kabaddi. So India has always won the gold medal in the all world cups and the Asian games of this game, that is kabaddi. So the answer of the second one is A, that is kabaddi, KABADDI. So India has won the gold medal in all the games, that is in all the world cups and the Asian games in the game kabaddi. Moving to the third one, this is a comic character who is from the planet Krypton. So which comic character is from the planet Krypton? The Krypton planet से कौन सा comic character है? That is Superman. तो Superman कौन से planet से था? He is from planet Krypton. So the answer of the third one is C, that is Superman. Superman. So Superman is a superhero who resides on planet Krypton. Fourth one is,
which country will host the 2018 FIFA World Cup? तो कौन सी कंट्री ने 2018 का FIFA World Cup, that is the football World Cup होस्ट किया था? So that was hosted by Russia. So 2018 का FIFA World Cup was hosted by, that is option number E, Russia. Okay. So this is the solution of the 4 MCQs given at page number 79. Okay. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.